Okay, further let us move. So it is BA cos theta. Now, if I draw this any arbitrary surface, then if n cap is the normal of this surface and magnetic field in this side, then this angle is theta. So theta is the angle made by the normal. Normal means which is at 90 degree with the given magnetic field. So this is called flux. Now flux will be maximum if theta is 0, cos 0 is 1, and flux will be minimum if theta is 90, minimum flux is 0. So this is very important concept that we are going to discuss today, electromagnetic induction. In class 10th, you perform the experiment that is performed with Faraday's experiment. उसने बच्चे एक एक्सपेरिमेंट किया. फैराडे ने क्या किया था, फैराडे ने दो एक्सपेरिमेंट हमारे दिए सिलेबस में. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक बच्चे एक मैग्नेट लिया, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल. एक उसने बच्चे कॉइल ली, कोई भी कॉइल, उस कॉइल को कनेक्ट कर दिया उसने एक इंस्ट्रूमेंट से, गैल्वानोमीटर. You know that galvanometer is an instrument which is used to measure the current. मैग्नेट को उसने आगे पीछे मूव करना शुरू कर दिया, कभी आगे लेके जाता, कोई पीछे लेके जाता. What he observed, when there is a relative motion between magnet and this coil, there is a reading in galvanometer. Now galvanometer gives the reading only when there is current. It means, according to Faraday, when there is a relative motion, there is current set up in this coil, there is EMF set up in this coil. उसने एक बार सोचा शायद ये इसलिए हो रहा होगा कि लाइन जाती है नॉर्थ टू साउथ बाहर, बीच में लाइन जा रही होंगी, वो उससे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. तो ऐसे करता हूँ कि इनको जाके मैक्सिमम लाइंस पास करवाता हूँ. उसने आगे आके स्टैटिक पोजीशन में रख दिया, स्टैटिक. So when he plays in static position, answer comes out to be zero. There was no current. There was only current when there is a relative motion, either move this side or move to this side. So there are two conditions, either flux increases or flux decreases. In both the cases, he was getting the reading. If he increase the flux, then answer come to left side. If he decrease the flux, then answer come to right side. That was the only difference. Okay, then Faraday performed second experiment. What was second experiment of Faraday? What he did consider a solenoid, उसमें उसने coils को wound up कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया उसने अल्टरनेटिंग करंट से, और इधर एक प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल लगा दी उसको गैल्वानोमीटर से. So when he passed the current, it's called primary coil, this is called secondary coil. Now what he observed, when he passed the current in primary coil, फर्स्ट कॉइल में करंट पास कर रहा था, रीडिंग सेकंड में आ रही थी. So why it was so when you pass the current in first, reading in the second? Simple concept was, when you pass the current in the first one, the first becomes a magnet. That's one, electromagnet. It's a line passing through the neighboring coil. Neighboring coil, look at this. साथ वाली में क्या करंट. अब जब साथ वाली में करंट गया तो वही फिनोमिना हुआ जो ऊपर पढ़ा था हमने. फ्लक्स चेंज हुई, फ्लक्स चेंज होती तो क्या पैदा होता, करंट. So this was Faraday's second experiment. Since this was AC current, and AC current changes with the time, so he was getting the reading. But if it is a DC current, then there will be no reading. Why? Because there is no change in current. And my first condition to produce the induced current, that there should be what? There should be change in the magnetic flux. This phenomena of producing the current is called the electromagnetic induction. Electromagnetic induction, the phenomena of inducing EMF. Inducing EMF. Why? Because of changing magnetic flux.
with respect to a coil, with respect to a coil, this phenomena is called electromagnetic induction. EMF होगा तो बच्चे करंट होगा. EMF होता है potential difference when it is not connected to the external circuit. So Faraday gave us two laws. First is called Faraday first law. First law states that whenever there is change in magnetic flux and induced EMF, whenever there is change in magnetic flux with respect to coil and induced EMF set up in coil and induced EMF set up in coil which last as long as there is change in flux. लास्ट लाइन का क्या मतलब है? ये तब तक करंट रहेगा जब तक आप क्या चेंज करोगे? फ्लक्स. अगर फ्लक्स चेंज करनी बंद होगी तो करंट पैदा होना बंद हो जाना है. दिस वॉज फैराडे फर्स्ट लॉ. Second question come, what is the formula to calculate that magnitude of this one? चलिए वो भी कैलकुलेट करते हैं. That is given by Faraday's second law. This was Faraday's second law. Formula to calculate that induced EMF. So what was the formula according to Faraday's second law? The magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to a rate of change in magnetic flux. A rate of change in magnetic flux, that is E, writing magnitude is directly proportional to d phi by dt, or I can write E magnitude is directly proportional to change in flux by time. कितने टाइम में वो फ्लक्स चेंज हो रही है बच्चे, उस पर डिपेंड करेगा. So when I remove this, I get a constant. So if I am not taking magnitude, it is minus d phi by dt. Now question is, sir, why it is a negative sign? So negative sign indicates that the direction of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux. Negative sign shows that, most important line is chapter में, shows that the direction of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux. So that I will discuss later on कि कैसे कैसे इसको करेंगे, पर ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस बेटा आपने याद रखना है. So clear? So this is formula that we use to find the EMF. Let us solve a simple numerical, then I come to next topic. The magnetic flux in a, this is numerical, very simple. The flux in a coil is given by 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5. This is the flux. The question is calculate the induced current. Current निकालना है मेरे को induced at time equal to 2 seconds. And it is given me the resistance of coil is 5 ohm. चलिए निकाल देते हैं. So what will be its answer? So I will use Ohm's law. Ohm's law says V equal to I into R. So if I know E, I can find the current. And E is given by in magnitude. Right now it is d phi by
dt, it means dt of derivative of 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5. So if you do the derivative, you get 15t square plus 8t plus 2. And this is the formula to calculate the induced EMF. But put the value of t is equal to 2 seconds. If you put t, so induced EMF will be 15 into 2 ka square 4, 8 into 2 16 plus 2. So after solving, it comes out to be 78 volts. Then I will be equal to E by R. E is 70, R is given to 5, 5 1 से cancel हो गया. So it is 15.6 ampere. Very simple numerical. So such type of numerical, number of numerical will come in which the value may be changes, may be नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. एक असाइनमेंट अच्छे से करके सॉल्व करना. एक सर्कुलर कॉइल में जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया मैग्नेटिक फील्ड का विद टाइम, तो ग्राफ कुछ ऐसे आया. कांस्टेंट हो गया, ये इस साइड चला गया. ठीक है बच्चे, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड थी टेस्ला में. ये जो ग्राफ जीरो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 1 था बच्चे, और इस साइड अगर मैं जा रहा हूँ तो ये जो टाइम था इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो बच्चे 2 था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 था, और ये बच्चे 6 था. कहता कैलकुलेट दी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सर्कुलर लूप वायर. एक सर्कुलर लूप है वायर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. उसका रेडियस दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर. वायर तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर लूप वायर 12 सेंटीमीटर रेडियस, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 8.5 ओम. कैलकुलेट द इंड्यूस करंट इन द लूप. इंड्यूस करंट निकालना है. अब इंड्यूस करंट निकालने के लिए बच्चे ई चाहिए. ई क्या होता है? ई होता है d5/dt. चलिए dt ऑफ 5 क्या होता है बच्चे? b इंटू ए. अब एरिया ऑफ कॉइल तो सेम है ना, बाहर ले जाओ, चेंज क्या करेगा? dB/dt. और आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक मेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, यहाँ से फिर नहीं चेंज की, यहाँ फिर चेंज की. तो मेरे को ये वैल्यू निकालनी है. So this equation, maybe I can write this equation as a b2 minus b1 divided by time taken to change that magnetic field. So after this I will solve for all the values, so for different times, and after solving you will get the answer comes out to be 2.7 milliampere. करके देखना, नहीं हुआ तो बच्चे मेरे से पूछना. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, 2.7 milliampere. So number of numericals that will come like this. Okay, let us move to next concept. So this was about Faraday's laws. Faraday gave us law. Faraday says this is a method to calculate all these parameters. Next, the important topic that comes, how to find the direction of that induced current or induced EMF. So that gave us by a scientist whose name was Lenz's. Lenz's law. Lenzslaw, Lenz's law. So sometimes question comes in MCQ that name the law which is used to find the direction of induced EMF. So answer will be Lenz's law. So according to this law, the direction of induced current is such that it opposes the cause that produces it. उसको ही अपोज करता है जिसने उसको पैदा किया है. गॉट इट? मतलब समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे. जरा छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लग गया आपने कहना सर इससे चीज़ ही नहीं कोई भी. ये एक मैग्नेट था, बार मैग्नेट. इसमें एक नॉर्थ पोल होता है बच्चे, एक साउथ पोल. आपने इसको आगे मूव करना शुरू किया
तो इसमें करंट फ्लो किया। अब करंट या तो क्लॉकवाइज होगा और क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे को कैसे फाइंड करना है, अगर ये विद वेलोसिटी वी आ रहा है तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। तो बेटा उसमें क्या करते हैं, जब ये आगे आएगा तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। इसने उसको अपोज, आगे नहीं आने देना, अपोज तभी करेगा अगर यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल। वाई बेटा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो अपोज हो गया, होने दीजिए। तो नॉर्थ नॉर्थ आया तो इसने इसको अपोज किया, तो इसमें करंट जो फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एक और फिर से देखो बेटा, एक मैंने कॉइल यहाँ रख दी, इसका इसलिए इस साइड जा रहा है और इससे साउथ ये पीछे को जा रहा है। देखो ये इसको आगे नहीं जाने देगा, ये इसको पीछे नहीं जाने देगा, तो इस पर फिर कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ को कुछ अट्रैक्ट करेगा, इसमें भी करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखना यही है पेपर में एग्जाम से आते हैं बच्चे क्वेश्चन। फिर से आपने कॉइल ली, फिर से आपने एक मैग्नेट लिया, अब आपने नॉर्थ साउथ एरो बार की तरह बना दिया विद वेलोसिटी भी। अब इस साइड नहीं जा रहा, पीछे जा रहा, फ्लक्स डिक्रीज कर रही है। इसमें अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रही है तो उसने उसको अपोज करना है। कैसे अपोज करेगा, अब नॉर्थ है वो नहीं जाने देगा, तो कौन सा बॉल आ जाएगा, साउथ। साउथ हो तो करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल है। एक और चलते हैं एग्जाम्पल। ये आपने एक कैपेसिटर लिया और इसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं एक मैग्नेट लेके आया, ये उसका नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, ये इस साइड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। आई हैव टू फाइंड द चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है जी, अभी कर देते हैं फाइंड। ये इस साइड बेटा मूव कर रहा है, तो अभी हमने कहा था जब फ्लक्स जाएगी, फ्लक्स इसके अंदर जाएगी, और अब जब इसमें फ्लक्स जाएगी तो इसमें करंट पैदा होगा, करंट पैदा होगा तो इसको अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा, तो ये नॉर्थ पोल जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, तो इस साइड क्या आ जाएगा, बोलो, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल आ गया तो करंट कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो एंटी। अब करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू, तो पता लग गई प्लेट्स एडेड। और चलते हैं, चलिए एक और दिखाते हैं हमको। अभी इसका मेथड है बड़ा सिंपल सा मेथड, आपको पता लगे कि जब ये भी चीज़ें होंगी तो उसकी हेल्प से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक और चीज़ चलते थोड़ा सा और आगे, एक मैं और डायग्राम बना रहा हूँ, क्रॉसेस। तो क्रॉसेस मीन्स आपको पता लग गया ये मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है बेटा उसके। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मेरी एक ये कॉइल, ये देखिए कॉइल अंदर एंटर कर रही है विद वेलोसिटी भी। ठीक है, इसका नाम मैंने लिख दिया ए बी सी डी। सो व्हेन इट इज एंटरिंग इनसाइड यू हैव टू टेल मी कि सर इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी बच्चे, एनीबॉडी करो ट्राई, 2 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड, सॉरी 2 सेकंड तो कम होंगे, 1 मिनट। कैसे इसमें फाइंड करेंगे, चलो हो गया टाइम पूरा। अब देखना बेटा, जब ये वाली चीज़ मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर एंटर करेगी तो इसका एरिया इंक्रीज करेगा। एरिया इंक्रीज मतलब जो जिसमें से फ्लक्स चेंज करेगी, पहले तो है ही बाहर है तो फ्लक्स चेंज ही नहीं कर रही, करंट ज़ीरो है, पर जैसे एंटर किया तो फ्लक्स इंक्रीज की, फ्लक्स इंक्रीज की तो अंदर करंट फ्लो करेगा। अब वो बोलता है जी करंट ऐसे फ्लो करना है कि वो उसको अपोज करे जिसने उसको प्रोड्यूस किया। जब ये देखना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके देखता हूँ, ये जब यहाँ पहुँच गई, ये देखना बेटा, थोड़ी सी अभी बाहर है, थोड़ी सी अंदर अंदर चलेगी जब ये। अब क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक क्रॉसेस है ये इनवर्ड्स है, क्योंकि हमें पता है इट इज़ इनसाइड। अब इसमें जो फ्लो करेगा वो अपवर्ड को करेगा,
अपवर्ड मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपरली साइड होगी। ऊपर क्यों होगी? क्योंकि अपवर्ड इसलिए होगी क्योंकि वो इसको अपोज करेगी। अपोज क्यों करेगी? क्योंकि लेंसेज लॉ बोलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट दैट अपोजेस द कॉस। और इसको अपोज तभी कर सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो उसके लिए ऊपर होगी, क्योंकि इसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रही है। एक मैं करूँगा जब बाहर निकालूंगा वो भी बताऊंगा आपको। दूसरा मेथड है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड, ये आपको मेरा हाथ दिख रहा है 90 डिग्री पे, एफ बी और आई। तो बी को नीचे कर दो, थंब अपना, थंब को कर दो जिधर डायरेक्शन है, तो दिस फिंगर, मिडिल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ये नॉर्थ पोल आ गया, एंटी क्लॉक है। इसको लेते लेते मैं यहाँ बाहर लेके जा रहा हूँ। आप देखना बेटा, जब ये बाहर जा रहा है, ये देखो ये एरिया बाहर जा रहा है। पहले ये फ्लक्स अंदर आई तो इंक्रीज करी थी, अब ये बाहर जा रही है तो क्या कर रही है? डिक्रीज। वो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है पहले उसके लिए कंपोनेंट ऊपर लगा था, अब उस फ्लक्स को इंक्रीज करनी है, कंपोनेंट कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। अगर वो कंपोनेंट नीचे लगेगा तो अब वो करंट जो एंटी क्लॉक था अब कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज फ्लो करेगा इसमें। नॉर्थ टू साउथ। अब एंटी क्लॉक हो जाएगा ना, क्लॉकवाइज हो जाएगा क्लॉक, क्योंकि अब हमें नीचे की तरफ चाहिए, ऊपर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, साउथ चाहिए ऊपर, तभी नीचे आएगा। तो तभी होगा अगर करंट क्या हो? क्लॉकवाइज। ये बच्चे एंटी क्लॉक बोला तो एंटी क्लॉक ऐसे थोड़ा होता है, एंटी क्लॉक तो ऐसे होता है, उल्टा बना दिया मैंने। एंटी क्लॉक ऐसे होगा, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है, एक और करते हैं चलो। ये लो, ये एक ट्रायंगल है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, आपको बताना है इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। अब जब देखो बेटा ये बाहर की तरफ आ रहा है तो ये जो एरिया है ये बाहर जा रहा है। जब ये एरिया बाहर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रही है। फ्लक्स कम हो रही है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, उस फ्लक्स को इंक्रीज करेगा वो। अब वो इंक्रीज कैसे करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसेस का मतलब डाउनवर्ड है, क्रॉसेस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है डाउनवर्ड है। अब जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी वो भी नीचे की तरफ होगी ताकि टोटल फील्ड बढ़ जाए और फ्लक्स इंक्रीज कर जाए, क्योंकि वो डिक्रीज करिए बाहर जो जा रहा है। वो तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पे कौन सा पोल आया था? साउथ, नीचे भी नॉर्थ होना था, लाइंस बाहर नहीं जानी थी, नीचे की तरफ जानी थी फिर, ठीक है ना, साउथ से नॉर्थ ऐसे। तो करंट कैसे होना था फिर? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, इट विल बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब बी टू ए, ACB we can say, ACB. So this is the method. सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे कोई आर्बिटरी शेप का पड़ा है और बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है तो एक चीज़ पक्का है कि उसकी फ्लक्स कम हो रही है, फ्लक्स कम हो रही है तो उसकी इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है तो करंट क्या होगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि तभी यहाँ पे साउथ पोल आएगा, साउथ पोल आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे को लगेगी, वो फ्लक्स को इंक्रीज़ करेगी। सो दिस इज कॉल्ड Lenz's law. Number of numerical or conceptual question like this to find the direction of induced current will come in the exam. So please remember, this is very important. Here, चलिए next चलते हैं. What are the different method to induce the current? Next question, that is topic number first, second. First was this, second, third, this was fourth one. Now we come to the fifth topic.
Fifth topic is methods to induced EMF. कौन कौन से मेथड हैं अभी देख लेते हैं. हमें पता है बच्चे E इक्वल टू इफ आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड सो डी डी टी ऑफ फाइव क्या था अपना बी ए कॉस थीटा. और चलते हैं E इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ बी ए थीटा को वी कैन राइट ओमेगा टी. So what are the different method to induce the EMF? So there are three ways by which we can induce the EMF. Number one is by changing magnetic field. Second is by changing area. And third one is by changing angle. So these are the three methods by which I can induce the EMF. By changing magnetic field, it's clear that if you take the electromagnet and keep changing the current, if you will change the current, there will be change in magnetic field and the induced EMF is set up. Now let us discuss by changing the area. This one is important. And whenever there is change in area, then the motive EMF that set up inside it is called motion. Then the EMF set up in this coil is called motional EMF. Now by changing the area, so we are going to find. So my next topic number 6 is motional EMF. So as the name implies, motional EMF due to the motion of the coil. Motional EMF due to the motion of the coil. So the EMF induced across the end of a conductor due to its motion in magnetic field. Very simple concept. Let us take magnetic field perpendicular to the plane of paper. Now in this, there is a conductor of length L free to move on U-shaped conducting rail. This is the conducting rail. All these are fixed. ये तीनों फिक्स है बेटा. कंडक्टिंग रेल मीन्स इसमें करंट भी फ्लो कर सकता है. ये फिक्स है. इसके अंदर हमने एक ये कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L है और ये मूव कर सकता है किसी भी साइड विद वेलोसिटी v. तो जब ये मूव करेगा विद वेलोसिटी v, तो इस ये देखो पहले ये रीजन था जहाँ फ्लक्स चेंज हो रही थी. अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, चलिए जी पीछे ले गए. अब ये एरिया भी हो गया पीछे. अब पहले इतने फ्लक्स चेंज हो रही थी, अब फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रही है. तो जब फ्लक्स का चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होता है, करंट होता है. इसके अक्रॉस EMF इंड्यूस हो जाएगा. इसके अक्रॉस EMF होगा तो कहाँ क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा. So we have to find the expression for that induced EMF. So let us suppose ये पीछे गया with distance x. इसकी लेंथ हमने अभी मानी थी कितनी बेटा, L. चलो जी कर देते हैं. सिंपल एक्सप्रेशन है मेरा. मैग्नीट्यूड इज डी फाइव बाई डी टी. डी डी टी ऑफ फाइव तो चेंज ही नहीं करेगा. मैग्नेटिक फाइव तो चेंज करेगा. करंट कहाँ से पैदा होगा. Magnetic field B A cos theta. Theta in this case is 0 since normal is this side. So normal cos 0 1. So take P is outside since it is not dependent upon time. ये तो constant ये process बन के इसका थोड़ा value change करेगी. So what will change? That will be change only area. And what is area? Length into breadth. देखो ये change हुआ ना area, length into breadth. Now B L इज सेम. इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है. ये एक्सेस वाला चेंज हो रहा है. वाई वाला तो सेम ही है. उसमें क्या चेंज है. इनसाइड यू गेट dx by dt. दिस इज व्हाट, दिस इज dx by dt. दिस इज द वेलोसिटी. सो दिस वेलोसिटी इज गिवन बाय BLV. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द EMF. EMF का मतलब क्या है कि ये एक पॉजिटिव पे आ गया, दूसरा नेगेटिव. पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव. दैट इज गिवन बाय E इक्वल टू PLV.
So this is called motional EMF. This is called motional EMF. Let us suppose if its resistance is R, then the current flowing is given by E equal to IR. So I will be equal to E by R. E. What is E? What is E? E is the EMF BLV by R. नो वन थिंग, एक दिमाग में कंसेप्ट और माइंड में आया, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर तो फोर्स भी लगनी है, विच इज़ गिवन बाय बी आई एल. बी मेरा फिक्स है, करंट मैंने अभी फाइंड किया बी एल वी बाय आर, लेंथ मैंने ये रखी, तो इसको सॉल्व किया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर आ गया. दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ड्यू टू व्हाट? This is the force which is acting due to current carrying conductor placed in magnetic field. Now another thing beta. So when there is a flow of current, एक चीज़ और देखो ना, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई. इट मीन्स द अकोमुलेशन ऑफ चार्ज एट द टू एंड्स कंटिन्यू टिल द फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बैलेंसेस ईच अदर. क्योंकि जब ये सेटअप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए तो फोर्स लगेगी. वो आपको पता है फोर्स कितनी होती है बच्चे? इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक भी आपने कर रखा है क्यू वी पी. सो द अकोमुलेशन ऑफ चार्ज एट द टू एंड्स कंटिन्यू टिल कब? व्हेन टू फोर्सेस बैलेंसेस ईच अदर. इफ यू सॉल्व इफ दीज बैलेंसेस, इट मीन्स क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी पी. क्यू क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ से एक और एक्सप्रेशन आ गया बच्चे, कौन सा? That V into B is equal to electric field. This is the velocity. This is the velocity. Also, the potential difference between the ends, positive or negative potential difference. You know that formula, V equal to E equal to minus D by dV by dr. So V will be equal to E into L. But this E, its value we written VBL. What this value here? VBL. So this is the potential difference. So as this EMF is produced due to the motion of a conductor, so it is called motional EMF. So there are two methods to find this expression. First method I did this one. This is the first method. This method I prove with the help of Lorentz force concept. So if the question